sentence carefully. As discussed in the earlier video, you can make use of the speed reading app to increase your reading speed gradually without compromising the comprehension of the text. The next technique I would suggest is to highlight any line you find important while reading through the text so that you don't miss that key point in the text. The natural way to go about reading a text is to garner the entire theme of the text by reading the first and last paragraph of the text. Then proceed further by reading the initial sentence of each paragraph carefully to get an idea of the entire paragraph, and then gradually increasing the reading speed for the remaining text of the paragraph. Now we will discuss about answering reading comprehension questions in your exam. Please remember that better knowledge of vocabulary helps you understand the text effectively and reading it faster. So please focus on improving your vocabulary. I've already discussed ways to improve your vocabulary in previous videos. Also, continuously evaluate yourself after practicing comprehension passage, identifying the areas you need to improve on. For example, what is the area of concern? Whether it is the concentration aspect you need to focus on, whether it's the vocabulary, whether it's the reading speed you need to work on, the best way to improve on each of these aspects is consistent practice, particularly focusing on the area which needs the most attention. Now let us discuss about some useful things to be kept in mind while solving a reading comprehension passage. Tip number 1. Find answers to the WH questions while reading a passage, such as who, what, where, when, and why. Tip number 2. Try to visualize the passage to remember and retain it. Tip number 3. Organize the key information in the passage in acronym form or maybe a flowchart form to avoid wastage of time in rereading the passage. Tip number 4. Focus on the questions asked to test your comprehension skills, because if you comprehend the meaning of the question wrong, then there is no possibility of getting the answer correct. Tip number 5. If you have a weak memory, then there is no need to panic, because it is not the entire passage which you need to remember, but only the questions asked for evaluating your comprehension skills, as if you are able to retain the questions asked in your mind, it gets easier to comprehend their answers while reading the passage as the questions are retained in your subconscious mind while reading the passage, and thus, you immediately pause while reading a passage as soon as you find an answer to a question naturally. But in the end, I would like to conclude that you need to work on 3 critical areas discussed earlier, which are concentration, vocabulary, and speed reading, which improves only with consistent practice, as you have several resources to support you in improving these areas. ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से ऑनवर्ड चीजों को वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन की कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती क्या है। ठीक है, सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या होती है। कम्प्रीहेंशन मींस टू अंडरस्टैंड। एक आपका जो पैसेज है आपने उसको पहले पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, क्रिटिकली एवेल्युएट किया कि उसके अंदर बेसिकली आपका जो राइटर है वो आपको कहना क्या चाह रहा था। उसको एवेल्युएट करने के बाद उसके टोन को, उसके स्टाइल को, उसके कंटेंट को आपने चेक कर लिया कि आपके पास बेसिकली वो आपको डिलीवर क्या करना चाह रहा था। एंड देन उसकी बेसिस के ऊपर अगर आपने आंसर करना है तो वो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस कहलाते। कोई पता नहीं है अभी शुजा, अ, गाड़ी स्टार्ट कर ली है हमने, अब क्लास कब तक जाएगी वी कांट से एनीथिंग। जब लेट्स सी अभी कहाँ तक जाती है, प्लान नहीं है अभी तक। अच्छा जी, तो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज हमारे पास आती है, ये वीडियो मैंने आपको दिखा दी जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेसिकली होती क्या है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को आप आंसर किस तरह से कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर, उसमें 2 स्लाइड जो स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो बेसिकली आपकी ये वाली स्लाइड है। इसके अंदर आपके यहाँ पे 2 चीजें सिर्फ कही जा रही हैं कि आपके पास एक पैसेज के अंदर, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ के अंदर होता क्या क्या है। एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास जो चीज होती है वो होती है कंटेंट ऑफ द रिटन पैसेज, कि बेसिकली उसके अंदर वो आपको कहना क्या चाह रहा है, क्या बता रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई कहानी सुना रहा है।
आपको कोई नसीहत कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ बता रहा है, क्या वो बता रहा है। दूसरी आपके पास जो चीज यहाँ पे आती है ना, एक सेकेंड, दूसरी जो चीज आपके पास यहाँ पे होती है, डेट इज बेसिकली द स्टाइल इन विच द पैसेज हैज बीन प्रेजेंटेड, कि आपका बेसिकली जो राइटर है उसका टोन क्या है। अब हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी आप अपने पैराग्राफ की टोन को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो आपकी 50 to 60% आपके करेक्ट आंसर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 50 to 60% आपके करेक्ट आंसर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कैसे आपके 50 to 60% आपके करेक्ट आंसर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर यहाँ पे एक और सवाल भी जन्म लेता है कि सर ये टोन ऑफ द पैसेज से मुराद क्या है, हम टोन कहते किसको हैं। सो सबसे पहले मैं आपको जो दूसरे चीज आपके माइंड में प्रॉब्ली होगी, उसका आंसर मैं पहले करना चाहूंगा कि आपके पास बेसिकली टोन क्या होती है। सो बेसिकली जो टोन होती है ना, वो आपके पास काफी तरह की टोन्स हो सकती हैं। हाँ, टोन मीन टॉपिक नहीं, टोन आपके पास काफी से तरह की टोन्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको ह्यूमरस वे के अंदर चीजें बता रहा हो, ठीक है, मजाहिया अंदाज के अंदर आपको चीजें बता रहा हो, ह्यूमरस टोन हो सकती है। हो सकता है कि वहां पर आपके जो एग्जामिनर है, जो पैसेज राइटर है, उसकी जो टोन है वो आपके पास क्रिटिसाइजिंग टोन हो सकता है कि वो किसी चीज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, यार नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। हो सकता है कि वहां पर आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है कि आपकी जो टोन है वो आपकी ऐसी टोन हो जिसमें उसने कोई मरने मारने का जिक्र कर दिया हो, ठीक है, एंड देन बड़ी सैड जो है वो टोन बना ली हो सकता है कि वहां पर आपको वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो सकता है कि वहां पर आपको किसी चीज की हिस्ट्री बता रहा हो। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो होती है ना, ये आपकी टोन ऑफ द पैसेज कहलाती हैं, कि आपके डिफरेंट, आपके पास आपके जो राइटर है उसकी टोन्स क्या क्या है। 28 को क्लास हुई थी, यानी पता नहीं 28 को हुई थी, जब आई डोंट रिमेम्बर। इससे अगर एक दिन पहले की पूछ रहे हो तो शायद मेरे चांद रात पे नहीं हुई थी। अच्छा जी, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास अगली जो चीज आपकी यहाँ पे आती है, दैट इज बेसिकली आपके पास जो दूसरी चीज आती है यहाँ पे, द स्टाइल इन विच पैसेज हैज बीन प्रेजेंटेड, इसका हमें फायदा क्या होता है। सो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अपने टोन ऑफ द पैसेज को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तो आपकी 50 to 60% आपकी करेक्ट आंसर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, 50 to 60% आपके करेक्ट आंसर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो किस तरह से? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपका एक पैसेज है जिसके अंदर उसने बड़ी कोई बातें शातें की हुई हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल बड़े मजाहिया अंदाज के अंदर बातें की हुई है, ठीक है, बड़े फनी अंदाज में, ह्यूमरस वे के अंदर उसने काफी सारी चीजें की हुई हैं। एंड एट द एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका एक सवाल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन ऐसे गिवन है जो कि आपको सैड टोन दे रही हैं, क्या आप कभी ऐसी ऑप्शंस की तरफ जाओगे कि जो आपको सैड टोन दे रही हो, जबकि आपका पैराग्राफ आपको जो टोन दे रहा है वो आपकी मजाहिया टोन है? डेफिनेटली नो। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या करते हो कि आप अपने जो रॉन्ग ऑप्शन है उससे बच जाते हो, अपने टोन ऑफ द पैसेज को अंडरस्टैंड करके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पेयर्स ऑफ द क्वेश्चंस की, तो आपके अमूमन आप अपने एफएससी मैट्रिक के अंदर भी आपने किया होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जहां पर आपको पैराग्राफ गिवन होता है और आपने उनको आंसर करना होता है क्वेश्चंस को। यहाँ पर भी आपके पास बेसिकली मोरलेस चीज वही है, मोरलेस आपके पास चीजें यहाँ पर भी आपकी एग्जैक्टली वही हैं, बट द थिंग इज, ये तो खैर बात। अच्छा जी, सो लेकिन यहाँ पे आपके पास जो फर्क है वो ये है कि आपको आपकी चार, बल्कि एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हो कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका करेक्ट आंसर भी अवेलेबल है।
आपकी अपनी 4 ऑप्शंस में से आपने अपना करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर लेना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास पॉसिबल वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस की, कि आपके पास पॉसिबल वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस क्या क्या हो सकती हैं। आपसे हो सकता है कि आपके राइटर जो है वो कहे कि बताओ आपके इस पैसेज का टाइटल क्या होगा। सेंट्रल आइडिया का आपसे कह सकता है, आपको कह सकते हैं कि वोकैबुलरी ऑफ अ सर्टेन वर्ड बताओ। ठीक है। हो सकता है कि आपसे वो स्पेसिफिक डिटेल इन द पैसेज मांग रहा हो सकता है कि वहां पे आपकी जजमेंट अबाउट द डिटेल्स मांग रहा हो, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपसे वो ये भी कह सकता है ना कि आप बताओ कि ये चीज है, ठीक है, अगर ये चीज इस तरह से हो रही है तो इस ये चीज जो है वो किस तरह से होगी। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास आपके टोन का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनर आपको कह दे कि बताओ कि आपकी जो जनरल टोन थी, मूड थी, या एटीट्यूड ऑफ द राइटर या पैसेज था वो क्या था। फिर इसी तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अच्छा अगर ये चीज है तो ये चीज जो है वो किस तरह हुई होगी फिर। ठीक है, तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इस तरह से आपके आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शन के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल इनमें से कौन सी बात है या इनमें से कौन सी चीज है जो आपका राइटर इस पैसेज के अंदर नहीं कहना चाह रहा था। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपके पास रेंज ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द टॉपिक में बी रिलेटेड टू साइंस, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, बॉटनी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी हो सकती है। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपकी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आपका टॉपिक हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका लिटरेचर है, म्यूजिक है, फिलोसफी है, फोकलोर है। ठीक है, या फिर आपके सोशल साइंसेज से रिलेटेड आपका टॉपिक हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, गवर्नमेंटल इश्यूज हैं आजकल बड़े हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है। ठीक है, या फिर आपकी डेमोक्रेसी का टॉपिक है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके क्या कहते हैं उसको, हाँ करप्शन करप्शन के ऊपर आपके पास टॉपिक है। तो ये आपके हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं जो अमूमन रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपसे वो पूछ सकता है। ओके, सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं आपकी स्किमिंग और दूसरी चीज आपके पास होती है स्कैनिंग। सो आपकी दो चीजें यहाँ पे होती हैं, एक आपके पास कहलाती है स्किमिंग और एक आपके पास होती है स्कैनिंग। स्किमिंग हम कब करते हैं और स्कैनिंग कब करते हैं। स्किमिंग बेसिकली होता है आपका मोटा मोटा पढ़ना या फिर ओवरव्यू करना। स्किमिंग हम करते कब हैं, जब हम हमसे हमारे पैसेज के अंदर आपसे टाइटल पूछ लेता है या फिर आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसमें वहां पे क्या करते हैं, वहां पर हम स्किमिंग करते हैं। ठीक है, हम मोटा मोटा चीजों को पढ़ लेते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं आपके पास स्कैनिंग की, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने टाइटल अगर आपसे वो कह रहा है, टाइटल के बारे में भी एक चीज याद रखना है कि आपके 50 to 60% चांसेस होते हैं कि आपका जो टाइटल ऑफ द पैसेज होगा वो आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर होगा, कीपिंग इन माइंड द टोन एंड पर्पस ऑफ द पैसेज। ठीक है, टोन या पर्पस को नहीं भूलना कि आपके पास उसका टोन क्या है या पर्पस क्या है पैसेज का। टोन या पर्पस को मद्देनजर रखते हुए आपके जो 50 to 60% चांसेस होते हैं कि आपका जो टाइटल होगा वो आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर होगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास अराउंड अराउंड आपके 30 to 40% चांसेस होते हैं कि आपका जो टाइटल ऑफ द पैसेज होगा वो आपकी लास्ट लाइन के अंदर होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अराउंड आपके पास 10 to 15% या 20% मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका जो टाइटल ऑफ द पैसेज होगा वो आपकी कहीं लास्ट सॉरी आपकी की मिडिल के अंदर लाया कर रहा होगा। सो आपने अपना जब भी टाइटल देखना है अपने टोन ऑफ द पैसेज को मद्देनजर रखते हुए, तो आपने पहले सबसे पहले अपना टाइटल जो है वो अपनी फ्रंट लाइन के अंदर देखना है, या फिर आपकी जो पहली लाइन है, या फिर आपने जो है वो लास्ट लाइन के अंदर देखना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास दूसरी जो चीज हमारे पास होती है डेट इज बेसिकली और स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होती है,
स्कैनिंग बेसिकली होती है कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल किसी चीज के बारे में वो पूछ, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक पैसेज दे देता है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, एंड देन फिर आपसे वो ये पूछता है कि बताओ इस पैसेज के अंदर आपका जो राइटर है, इस पैसेज के अंदर जो आपका राइटर है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड आपको क्या कह रहा है, ठीक है, या फिर आपकी कलर ऑफ द स्लाइड्स होती हैं उससे रिलेटेड आपके पास क्या कह रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास स्कैनिंग कहलाती है। श्योर। सो स्किमिंग आपके पास बेसिकली क्या होती है, स्किमिंग आपके पास होती है कि आपने चीजों को मोटा मोटा पढ़ना है, ओवरव्यू करना है, जबकि स्कैनिंग जो होती है वो आपके पास क्या होती है कि आपने अपने वर्ड को अपने जो आपके क्वेश्चन है उसको आपने डिटेल में कहीं से ढूंढना है आपके पैराग्राफ के अंदर से, एंड देन फिर आपने उसको आंसर करना है। अच्छा, सो नो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक अमूमन बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है दो, लेकिन स्टिल आपके पास बेसिकली दो चीजें आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना किस तरह से है। सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है डेट इज बेसिकली नोन एज योर प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या चीज है और आपको क्या कहती है? प्री रीडिंग एक्टिविटी आपको ये कहती है कि आपने बजाय के सबसे पहले आप क्वेश्चन के ऊपर जाओ, ठीक है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ, आप पहला सॉरी डायरेक्टली आप पैराग्राफ के ऊपर चले जाओ। सबसे पहला काम आपने हमेशा ये करना है कि हमेशा आपने सबसे पहले अपने पैराग्राफ को रीड करना है, सॉरी क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करना भी इस तरह से नहीं है कि आप उसको प्रॉपरली रीड आउट करना स्टार्ट कर दो। एक वो कहते हैं ना उर्दू में सरसरी सी निगाह मारना, तो जस्ट आपने एक ओवरव्यू कर लेना है, एक नजर आपने देख लेना है कि आपके बेसिकली क्वेश्चंस हैं क्या। जब आप अपने क्वेश्चंस को आप देख लोगे, आप अपने क्वेश्चंस को रीड आउट कर लोगे, ठीक है, इन दैट केस बिल्कुल आपकी जो स्किमिंग है आप कर लोगे, तो इन दैट केस बेसिकली आपका आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपके पास आता है वाइल रीडिंग एक्टिविटी। वाइल रीडिंग एक्टिविटी आपको ये कहता है कि अगर आपने अपने पैसेज को पढ़ लिया है, अब आपको ऐसे तमाम अल्फाज जो कि वहां पे क्वेश्चंस के अंदर आपको नजर आए थे, रीडिंग पैराग्राफ को रीड करते हुए वो अगर तमाम अल्फाज आपको पैराग्राफ के अंदर नजर आ रहे हैं ना, आप क्या कर लो कि उनको मार्क कर लो या फिर उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो इन दैट केस बेसिकली इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास, आप एक और काम कर सकते हो कि आपने ऐसे तमाम अल्फाज जो आपके आपके पैराग्राफ के अंदर हैं, जो आपके बोल्ड के अंदर हैं, इटैलिक्स के अंदर हैं, अंडरलाइन है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, ठीक है, हाँ जी आप डॉट वगैरह लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास बोल्ड है, इटैलिक्स है, इन्वर्टेड कॉमास में है, अंडरलाइन है, उस पैराग्राफ की उस लाइन के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज अगर किसी भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है तो डेट मीन्स कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर होगा जो कि उसने बेसिकली आपके जो राइटर है, जो पैसेज वाला है, उसने अपने ऐड किए होंगे, ठीक है। पेपर पे होगा सिर्फ। अच्छा जी, पेपर पे आपके पास जो पेपर होगा ना उसके पर आपने मार्क कर देना। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके पास अगली जो चीज आती है डेट इज बेसिकली योर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी आपको क्या कहती है? पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी आपको ये कहती है कि नेवर स्टक टू एनी क्वेश्चन। अगर आपके पास एक सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पे आपने अड़ लगा के नहीं बैठ जाना, या फिर आपने जिद लगा के नहीं बैठ जाना कि ये क्वेश्चन मेरे से होता कैसे नहीं है सॉल्व। अब तो मैं, हाँ जी बिल्कुल मिलता है रफ पेपर। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जब चले जाओगे, देखो इसमें बेसिकली मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपकी ये साइकी की गेम है सारी। जब आप अपने क्वेश्चन को आप उसको छोड़ एक बार देख लेते हो ना अपने सवाल को रीडिंग कम्प्रीहेंशन के,
आप अगर उसको आंसर करना छोड़ भी देते हो तो इन दैट केस आपका जो माइंड है वो स्टिल उसके ऊपर प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखता है। ठीक है। हरीश पांच। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वापस रिज्वाइन कर लो। गुलाम हाफिज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज क्या दिन है। ठीक है। अब लेट से फॉर एग्जांपल मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा होता कि आज क्या दिन है अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि आज ये दिन है, या फिर मैंने आज ये काम करना था। या फिर अक्सर ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो चीज को, कोई बात करने लगे होते हो वो भूल जाते हो। ऑल ऑफ द सडन आप कोई और काम कर रहे होते हो, वो आपको बात याद आ जाती है। या फिर आपकी अगर फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हो जाती है, जो आपके अच्छे अच्छे जवाब होते हैं वो आपको रात को आ रहे होते हैं, जब आप बैठ के बैठे होते हो, कोई और काम कर रहे होते हो, गेम खेल रहे होते हो एंड व्हाटसोएवर। सो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि आपका जो माइंड गेम है ना उसको आपने जो है वो लाजमी माइंड में रखना है कि आपके पास बेसिकली होता ही है कि जब आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक सवाल आपसे हो नहीं ना रहा, आपने वहां पे रुक नहीं जाना। आपने क्या करना है कि आपने उस सवाल को वहीं पे स्किप करो, आगे जो है वो मूव कर जाओ। बिकॉज उसके उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका जो माइंड है ना वो एक्चुअली आपकी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी ये है कि आपका माइंड जो है वो डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास जो माइंड है वो आपका फ्रंट एंड माइंड है, और एक का बैक एंड माइंड है। जो आपका फ्रंट एंड माइंड है ना वो आपके साथ बेसिकली अगले सवाल के ऊपर चला जाता है, लेकिन जो आपका बैक एंड माइंड है ना वो स्टिल उस सवाल के ऊपर प्रोसेसिंग जारी रखता है, और वो उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल रहा होता है। जब आप बाकी चीजें करके आते हो ना वापस उसी सवाल के ऊपर, आप देखते हो कि जो सवाल आपका 10 मिनट लगा रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक सवाल है जो आपका 10 मिनट लगा रहा है, अब वही काम आप उसको अगर छोड़ देते हो, आप बाकी काम करके आते हो, तो वापस उसके ऊपर ऊपर आते हैं तो वही काम आपका विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपने क्या करना है कि कभी भी आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक होती यही है कि बच्चे रुक जाते हैं, आपने रुकना नहीं है। आप अगले क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट हो जाओ ताकि आपका जो टाइम है वो जाया ना हो, आप उसको इजिली आंसर कर भी सको। अच्छा, कुछ आपके पास यहाँ पे टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, यहाँ पे इसको रीड आउट कर लें एंड देन फिर जल्दी से चैट बॉक्स में डन लिखते हैं रीड करने के बाद।
ओके, इसको भी रीड आउट कर ले। एक यूनिवर्सिटी का फेज 1 का टेस्ट दिया था, फेज 2 का टेस्ट कैसे देना है, कैसे अप्लाई करना है, वहां पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, जिसको शुजा बेसिकली वहां पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? सोलह को टेस्ट है, हो जाएगा। 16 वालों को अपनी टेंशन पड़ी भी है, 9 वालों को अपनी पड़ी भी है, 23 वालों को अपनी, क्यों परेशान होते हैं यार? हो जाएगा इंशाल्लाह, इसीलिए तो आपकी थर्ड डे हमने एंजॉय करने की बजाय क्लास रख ली है। एयर की लास्ट डेट क्या है? मैंने वैसे देखी नहीं है, to be honest। तो कर देंगे आगे एक्सटेंड होपफुली। 7 जुलाई, 2 जुलाई। 7 जुलाई है कह रहे हैं बच्चे। अप्लाई कैसे करना है शुजा? सेम प्रोसीजर है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले फेज के लिए अप्लाई किया था ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। हाँ जी, हो जाएगी जी इंशाल्लाह। वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आता है कि हो गई शुजा, जो कि चलो वहाँ देखते हैं। सो रीड कर लिए सबने? एनीवन लेफ्ट? जल्दी से एंट्रेंस कर दें अगर कोई अभी भी रीड कर रहा है। लाइबा जल्दी से करना। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस शो करवाता हूँ एंड देन। जी 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 जी। यार हो जाएगा, कवर हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों परेशान होते हो? चलो लेट मी ओपन। हाँ, ओके चले, मैं आपको पहले क्वेश्चंस शो करवाता हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको पैराग्राफ शो करवाता हूँ। जल्दी से एक नजर आप अपने क्वेश्चंस को देख लें पहले। हाँ हाँ, उसकी सिर्फ उसी मजबूरी की तहत ही रखा था, क्योंकि बच्चों के आज काफी मैसेज आए हुए थे कि सर आज क्लास ना हो, बट हमें रखनी थी, मजबूरी थी हमारी। एक एक नजर क्वेश्चंस को देखते जाओ। चले, अब आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ को रीड आउट करना है एंड देन फिर डन लिख देना, सो डेट मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चंस दिखाता जाऊँ। नहीं नहीं, सिर्फ क्वेश्चन।
ओके जी, सो एनीवन लेफ्ट हैंडर्स प्लीज, एनीवन लेफ्ट जो कि अभी भी रीड आउट कर रहा हो। चलिए जी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर वन, द मोस्ट important thing being about being a writer is that सो बेसिकली आपने वहां पे पैसेज के अंदर देखा था कि आपके पास वो कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग being a writer is that you must have a pen and a paper, no. You must have a degree in writing, no. You must have a painful hurt, इसकी भी उसने जिक्र नहीं किया। You must learn to develop your own point of view, yes. बेसिकली इसी चीज के बारे में आपके पैराग्राफ के अंदर वो जिक्र कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, the narrator advises the reader to write in order to देखो जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज की कोई तारीफें वगैरह कर रहा हूँ कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, व्हाट डज दैट मीन अनुष्का? सो इसका यही मतलब होता है ना कि बेसिकली आई एम इनकरेजिंग यू कि आप वो चीज वो काम करो, ठीक है। सो सेम इज द केस कि वहां पे आपके जो राइटर है वो आपको कहते हैं कि आपको राइटिंग की ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके पास क्या कह रहा है, इसका क्यों वो आपको बेसिकली वो सारी चीजें बता रहा है? टू इनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर। बेस्ट ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड किस तरह की चीजें? वर्ड। सो ये चीज आपकी वहां पर डायरेक्टली मेंशन भी थी कि आपके पास ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज, ठीक है। A successful writer's presentation must reflect वर्ड, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली खुद ही कह रहा था कि उसकी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। तब अच्छा जी, द फेस पेन इट डाउन हेयर मीन्स